کائنات کو وجود بخشا۔ اے آدم سنو، میں نے اگر تمہیں پیدا فرمایا ہے تو اسی نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، بات کروں گا تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی، بس ایک بات آخری اور آپ سماعت کر لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب نسل انسانی پھیلنا شروع ہو گئی ہے روئے زمین پر، تو آدم علیہ السلام یعنی مائی حوا سے بچے جب پیدا ہوتے تھے تو دو بچے پیدا ہوتے تھے، جڑوا پیدا ہوتے تھے، لیکن جب نور محمدی کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی سے آگے بڑھانا چاہا تو اب جڑوا نہیں، اس وقت حضرت شیس علیہ السلام تنہا پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار مقدس کہیں دور نہیں، علماء کرام بیٹھے ان سے پوچھ سکتے ہیں، شہر اولیاء جسے ایودھیا کہا جاتا ہے وہیں پر ان کا مزار مقدس ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو وہ تنہا پیدا ہوئے، لیکن اس سے پہلے جب مائی حوا کے بدن سے بچے پیدا ہوتے تھے تو دو پیدا ہوتے تھے، لیکن جب حضرت یعنی شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو تنہا پیدا ہوئے۔ یہ بھی ایک میرے سرکار کے معجزے میں سے ایک معجزہ ہے۔ سن لو اے مسلمانوں، آدم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، جتنے آئے وہ کہتے رہے اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، تم میرا کلمہ پڑھ رہے ہو، میں اس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور بشارت دیتے رہے وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ یحییٰ کہہ رہے تھے وہ آنے والے ہیں، موسیٰ کہہ رہے تھے وہ آنے والے ہیں، زکریا کہہ رہے تھے وہ آنے والے ہیں، حضرت لوط کہہ رہے تھے وہ آنے والے ہیں، حضرت داؤد کہہ رہے تھے وہ آنے والے ہیں، موسیٰ نے کہا وہ آنے والے ہیں، جب آدم نے کہا وہ آنے والے ہیں، لوگ کہتے رہے وہ آنے والے ہیں۔ سارے نبی جو آئے ان کے امتی ان کا کلمہ پڑھے، مگر نبی کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہم اتنے خوش نصیب ہیں جن کے امتی میں پیدا ہوا ہے نبی انہی کا کلمہ پڑھتے تھے۔ حضرات وہ آنے والے ہیں، کہتے تھے سارے نبی وہ آنے والے ہیں، ہم راستہ کلیئر کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ آنے والے ہیں، ہم راستے سے جو گرد و غبار ہے اسے ہٹانے کے لیے آئے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ لوگ کہتے تھے نبی جتنے آئے وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ ارے ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں کہ نبیوں نے جس کے امتی میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں مانگی تھی وہ اس نبی کے ہم امتی ہیں، ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کے اس ظاہری زمانے یعنی اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تھا تو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا تھا، اور بلانے کے بعد میں کہا تھا وہ آنے والے ہیں، اے میرے بیٹے جب تم پر کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پریشانی آئے تو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ بنا کر کے رب کے حضور دعا کرو، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ حضرت شیس پیغمبر نے کہا ہے میرے ابو جان، نسل انسانی کے باپ آپ ہیں، اور یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو محمد الرسول اللہ کا وسیلہ بنا کر کے دعائیں مانگو، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ یہ کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس سے کہا تھا کہ وہ آنے والے ہیں، اللہ نے جن کے صدقے میں ہمیں پیدا فرمایا ہے انہی کا نام ہے محمد الرسول اللہ، وہ آنے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس نے کہا ہے ابو جان یہ آپ نے کیسے جانا اور کیسے پہچانا کہ اگر ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جائے تو مقبول ہو جائے گی؟ حضرت آدم نے کہا ہے میرے بیٹے سنو، جب اللہ نے مجھے جنت میں میری جسم میں روح پھونکا تو میں جنت کے کونے کونے میں دیکھا جہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہیں محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اے میرے بیٹے شیس سنا، میں اس دنیا میں آیا 350 برس تک روتا رہا لیکن میری توبہ نہیں قبول ہوئی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے کہا میرے ابو جان پھر کیا ہوا؟ حضرت آدم نے کہا سنو میرے بیٹے، جب 350 برس تک میں روتا رہا آسمان کے طرف اپنی نگاہ کو نہیں اٹھایا، میری توبہ نہیں قبول ہو رہی تھی، مجھے ایک دن خیال آیا کہ جو عرش اعظم کے کھمبوں پر لکھا ہے، جو جنت کے کونے کونے پر لکھا ہے، اس نبی کا کیوں نہ آج ہم اس نام کا وسیلہ بنا لیں، اور جیسے آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اس نبی کا وسیلہ بنایا، اللہ
ने मेरी तौबा को कबूल फरमा लिया है। इसीलिए आदम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे शीत, जब तुम्हें कोई परेशानी आए तो अहमद मुख्तार का वसीला बना लिया करो, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन बाहर मुसलमान, आज हम हैं, आप हैं, हमारी गैरत कहाँ मर गई है। आज हम अपने आप को कहते हैं नबी के दीवाने हैं। अरे नबी का दीवाना जो होता है वो चलता है तो उसके चलने की अदाएं नबी नबी हुआ करती हैं, वो बैठता है तो उसके बैठने की अदाएं नबी नबी हुआ करती हैं, जब वो खाता है तो सुन्नत मुस्तफा के तरीके पर बैठ करके वो खाना तनावुल फरमाया करता है, और जब वो सोता है तो लफ्ज़े मोहब्बत बन करके सोया करता है, जो नबी का आशिक हुआ करता है, जो नबी का दीवाना हुआ करता है। अरे दीवानगी की बात आई है तो सुन लो, मेरे आला हजरत ने अपने नबी से किस तरह से मोहब्बत करते हैं, किस तरह से प्यार करते हैं, अपने नबी की शान में मदहो सराई करते हुए लिखते हैं, या रसूल अल्लाह जानो दिल होशो खैरा सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खैरा सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हज़रत अल्लाह तबारक तआला ने अपने हबीब को रहमतुल लिल आलमीन बना करके इस दुनिया में पैदा फरमाया है। आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये आज सरकार की महफिल हम में बैठ करके रचा बचा करके हम एहसान नहीं लाद रहे हैं सरकार पर, ये हम पर सरकार का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने अपने हबीब को हम जैसे गुनहगार उम्मतियों में पैदा फरमाया है। ऐ मुसलमानों सुन लो, आज माह रबीउन नूर शरीफ की 12 तारीख है, और इसी रात में मेरे सरकार हस्ते आमिना के यानी शिकमे मुबारक से इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। और कब तशरीफ लाए, मेरे सरकार के इस दुनिया में आने से पहले हस्ते ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से जाने के बाद में 571 वर्ष का जमाना गुजर गया था, कोई नबी नहीं इस दुनिया में तशरीफ लाया था। 571 साल के बाद में अल्लाह ने अपने हबीब को इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। हज़रात मोहतरम, अगर बात करूंगा तो बहुत बात आगे बढ़ती चली जाएगी, बस थोड़ी देर आप सरकार की पैदाइश समाअत करने मेरे सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तो रहमतुल लिल आलमीन बन करके इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। 12 रबीउन नूर शरीफ की ये तारीख है, जो आज की तारीख में हर आप बैठे हुए हैं। मेरे सरकार जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अमन और शांति का पैगाम देने के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया है। मेरे सरकार के नूर से अल्लाह ने सारी कायनात को वजूद बख्शा है। आला हज़रत अज़ीमुल बरका मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान के, जान है तो जहान है, जान है वो जहान के, जान है तो जहान है। हज़रात अपने नबी से कैसी मोहब्बत करने वाले कैसे कैसे लोग गुजरे हैं। आज हम भी कहते हैं अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, मगर ना तो हम सरकार के नाम पर जुलूस मोहम्मदी में शामिल हो सकते हैं, न सरकार की महफिल में हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं। कैसे कहते हो सरकार के आशिक हैं, कैसे कहते हो सरकार के दीवाने हैं। अरे सरकार के नाम पर अगर दौलत की बात क्या है, अगर जान लुटाने की बारी आ जाए तो अपने नबी पर जान को कुर्बान कर दिया करो। इसलिए अगर जान मिली है किसी और के सदके में नहीं, अहमद मुख्तार के सदके में हमें जान मिली है। जो कुछ भी मिला है सरकार के सदके में मिला है, कोई दुनिया दान नहीं देता है, जो भी मिलता है अहमद मुख्तार अता करते हैं। आला हज़रत तो हमारी हर जगह रहनुमाई फरमाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रात यही वो तारीख थी जिस तारीख में मेरे सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस वक्त मेरे सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं जब बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उसको या तो शहर बदर कर दिया जाता था, या उसी के शौहर के साथ में उसके सीने पर चिता रख करके आग रख करके जला दिया जाया करता था। उस वक्त मेरे सरकार में तशरीफ लाए। आज सबसे ज्यादा अगर सरकार की मीलाद मनाने की खुशी मनानी चाहिए तो बच्चियों को मनानी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने इन बच्चियों को अगर जिंदा रखा तो मेरे सरकार के सदके में अगर मेरे सरकार ना आते तो बच्चियां दरगोर होती रहती।
मेरे सरकार आए तो बच्चियों को जिंदगी मिल गई है, और जिसको वो सारे लोग अभागन कहा करते थे उसको मेरे सरकार ने सुहागन बनाया है। उन्हें ज्यादा सरकार की महफिल मिलाद मनानी चाहिए। आपको मैं बताऊं, मेरे सरकार जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, और जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो आपने सुना होगा कि दाई हलीमा गई थी मेरे सरकार को लेने के लिए। दाई हलीमा गई थी मेरे सरकार को लेने के लिए। वही दाई हलीमा है जब जा रही थी मक्का के सरजमी पर, मेरे सरकार इस दुनिया में नहीं तशरीफ लाए थे, उससे पहले यानी मेरे सरकार के इस दुनिया में आने से पहले उनके वालिद का साया सर से उड़ चुका था। आपने बारहा इन उलमाए कराम से सुना होगा, इन उलमाए कराम से सुना है आपने। मेरे सरकार को जब दाई हलीमा लेने के लिए जाती हैं तो वही ऊँटनी है जिस पर दाई हलीमा सवार होकर के जा रहे थे, रास्ते में 6-6, 7-7 मरतबा बैठ जाया करती थी। सबसे बाद में मक्का में पहुंची थी दाई हलीमा, लेकिन जब मेरे सरकार को पा लेती हैं, पूरे मक्का में यानी पूरे जो रईस के घराने के लोग थे, और दाइया गई थी वो अमीर घराने के लोगों को यानी बच्चों को लेकर के चले आए थे। अगर कोई बचा था तो मक्का में सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचे थे। दाई हलीमा अपने शौहर से मशवरा लेती हैं, अगर हम नंगे हाथ खाली हाथ चले जाएंगे तो मक्का के लोग हमें क्या कहेंगे, हो ना हो ले चलो। यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पोते ही को साथ में लेकर के चले, खाली हाथ ना लेकर के चले, इसलिए कि उनके नसीब में दाई हलीमा की किस्मत का सितारा और जो सुरैया पर पहुंचने वाला था। मेरे सरकार को लेने के लिए दाई हलीमा जाती है, और जब मेरे सरकार को लेने के लिए दाई हलीमा बीबी आमिना के पास, मेरे सरकार के अम्मी जान के पास में जाती है, तो सरकार की माँ से आमिना ने कहा था, मेरे दाई हलीमा सुनो सुनो, ये मेरा बेटा कोई आम बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा कोई मामूली बेटा नहीं है। आमिना बीबी कहने लगती है दाई हलीमा से, सुनो सुनो, जिस वक्त ये मेरा बेटा मेरे शिकम में आया, जिस रास्ते से मैं गुजरती थी वो रास्ता महकता रहता था। जब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, लोग मुझे ताना देते थे, और मुझे ताना देते थे और कहते थे ये आमिना कौन सी खुशबू लगा करके चल रही है कि जिस गली से गुजरती है वो गली महक जाया करती है। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास में ये लोगों ने शिकायत किया था कि आपकी बहू कौन सी खुशबू लगा करके चलती है कि पूरा इलाका महक जाया करता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, जब पूछते हैं तो मेरे सरकार की वालिदा ने जवाब दिया था, मेरे सरकार की वालिदा ने जवाब दिया था, मैं कोई खुशबू लगा करके नहीं चल रही हूँ, ना मैं तो मार्केट से कोई इतर लेकर के आई हूँ, ना खुशबू लेकर के आई हूँ। अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो सुनो, अल्लाह ने जब से मेरे शिकम में यानी बच्चे को डाला है, उस वक्त से मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ वो रास्ता महकता हुआ नजर आता है। जब से ये मेरा बेटा मेरे शिकम में पल रहा है, उसी वक्त से ये खुशबू फैल रही है। मैं मार्केट से कोई खुशबू लेने के लिए नहीं गई, मैं कोई यानी इत्र खरीदने के लिए नहीं गई। हज़रात वो मेरे सरकार हैं, और क्यों ना हो जिस रास्ते से मेरे सरकार गुजरे वो रास्ता महकता रहे। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हज़रत मोहतरम दाई हलीमा के यानी दाई हलीमा से आमिना कहती है, सुनो ये मेरा बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा जब से मेरे शिकम में आया है, इस तरह से दिन गुजर गए कि मुझे एहसास नहीं हुआ, मुझे पता नहीं चला कब मेरे बच्चे की विलादत के वक्त आ गया है, टाइम पूरा हो गया है। हज़रत आमिना कहती है, और माओ के बच्चों के तकलीफ पर जो होती है, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरा बच्चा कब इस दुनिया में तशरीफ लाया है। हज़रत आज हम उस नबी के चाहने वाले हैं, उस नबी के मानने वाले हैं। अरे हम नबी से कहते हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी के उम्मती है, नबी के दीवाने हैं। अरे कहाँ कहाँ मेरे सरकार ने हम जैसे गुनहगार को याद फरमाया है। जिस वक्त मेरे सरकार पैदा होते हैं उस वक्त मेरे सरकार अपने गुनहगार उम्मतियों को नहीं भूल रहे हैं। जिस वक्त मेरे सरकार पैदा होते हैं अपने गुनहगार उम्मती को रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते हुए नजर आते हैं। मेरे सरकार जब पैदा हुए तो अपने सर को सजदे में रखा, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। कहाँ कहाँ मेरे सरकार हम गुनहगारों को याद फरमा रहे हैं। मेरे सरकार पैदा हुए तो अपनी बेटी हज़रत फातिमा को नहीं याद फरमाया, हज़रत रुक़ैया को नहीं याद फरमाया, और अपने खानदान वालों को इमाम हसन हुसैन को नहीं याद फरमाया। अगर मेरे सरकार पैदा
होते हैं तो किसी को याद करते हैं तो अपने गुनहगार उम्मती को याद फरमाते हैं। ये गुनहगार उम्मती कितना लायकदार है, आप गिरबान में खुद जाग करके देख सकते हैं कि हम नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम नबी से कितना प्यार करते हैं। अहमद मुख्तार हम जैसे गुनहगारों से कितना प्यार करते हैं। जब पैदा होते हैं तब भी हम जैसे गुनहगारों को याद कर रहे हैं। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। जब हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अब मैंने हज़रत मूसा के उम्मती को चलते हुए देखा है, हज़रत ईसा के उम्मती को जानना किसके लिए, हम जैसे गुनहगार उम्मती के खातिरा। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। जब मेरे सरकार मेराज में गए तो हम जैसे गुनहगारों को फरामोश नहीं फरमाया था। यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। मेरे सरकार हम जैसे गुनहगारों को कहाँ कहाँ याद फरमा रहे हैं। जब दुनिया से जा रहे हैं लहद मुबारक कब्र मुबारक में, उस वक्त मेरे सरकार हम जैसे गुनहगार उम्मतियों को नहीं भूल रहे हैं। आज हम अपने आप को कहते हैं सरकार के आशिक हैं, सरकार के दीवाने हैं, सरकार के फिदाकार हैं। मेरे सरकार ने हमें तो किसी मौके पर फरामोश नहीं किया है। आज वो नादान कैसे लोग हैं जो कह देते हैं माज़अल्लाह मेरे सरकार अपने जैसा बड़ा भाई कहते हैं। अरे अल्लाह ने मेरे सरकार को रहमतुल लिल आलमीन बना करके इस दुनिया भर में पैदा फरमाया है। वो जिस रास्ते से चले वो रास्ता महक जाए। अगर अपने शीर यानी खार कुएं में अपने लुआबे बहन को डाल दे, वो कुआं का पानी मीठा हो जाए। वो मेरे सरकार को अल्लाह ने तासीर बख्शा था। और मेरे सरकार की आज हम यहाँ पर महफिल में सजा करके बैठे हैं। सुन लो, मेरा ईमान कह रहा है मेरे सरकार इस महफिल में मनकापुर की सरजमी पर आए हुए हैं। और अगर नहीं आए हुए हैं तो भी मेरा ईमान कह रहा है मेरे सरकार अपने मज़ारे मुक़द्दस में आराम फरमा होकर के अपने आशिकों के, अपने गुलामों के नजराने अकीदत को समाअत कर रहे हैं। आए तब भी हम मोमिनों की महराज है, हम मुसलमानों की महराज है। और अगर समझ लो ना आए आराम फरमा होकर के हम गुलामों के नजराने अकीदत को देख के तब भी हमारी महराज है। सुना किसी कहने वाले ने कहा था, सुना है आप फराश आते हैं या रसूल अल्लाह, सुना है आप फराशिक के घर तशरीफ लाते हैं। हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और सुन लो, हम यहाँ पर बैठ करके अपने नबी को अगर पुकारेंगे तो मेरा ईमान कह रहा है मेरे सरकार समाअत करते हैं, मेरे सरकार सुनते हैं। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ। 14वीं की सदी के मुजद्दिद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। और आला हज़रत फरमाते हैं दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ऐ मुसलमानों, हम उस नबी की पैदाइश का दिन मनाने के लिए आए हैं। जो नबी आया इस दुनिया में तो लाजवाब, मेरा नबी तमाम नबियों में लाजवाब है, तमाम नबियों में बेमिसाल है। हम उस नबी की मीलाद में बैठे हुए हैं। मेरे सरकार आए तो अमन और शांति का पैगाम लेकर के आए हैं। मेरे सरकार आए तो जो बच्चियां दफन की जा रही थी उन्हें जिंदगी मिल गई है। मेरे सरकार आए जो बेवाओं को भगा दिया जाता था, जिन्हें कोई नहीं पूछता था, उन्हें मेरे सरकार ने अपना बना करके पूरी दुनिया को ये मिसाल बना दिया है कि जिनके शौहर का इंतकाल हो जाए उन्हें अभागन मत समझा करो, उन्हें तुम अपनाया करो, सुहागन बनाया करो। हज़रत मेरे सरकार इस दुनिया में आए तो अमन और शांति का पैगाम देने के लिए आए हैं। लेकिन आज आप खुद देख सकते हैं हम अमन और शांति को बांट रहे हैं या और कुछ बांट रहे हैं। और एक आखिरी बात मैं आपको और बता करके अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। आज की रात में तुम जितना खुशियाँ मनाना है मना लो, और खुशियाँ मना करके तुम आज की रात में नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अपने नबी पर दुरूद पढ़ो। और सुबह सादिक के वक्त जिस वक्त मेरे सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए, सो मत, जाग करके अपने नबी की पैदाइश पढ़ा करो। अगर रात की तारीकी में कोई ना मिले तो अपने अहलो याद को बिठा करके नबी की पैदाइश पढ़ लिया करो। कुछ ना याद हो तो सरकार पर दुरूद सलाम पढ़ लिया करो। मशाइख लिखते हैं और कहते हैं, लिखते हैं कि जिस वक्त मेरे सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए मक्का मुकर्रमा में, इंडिया यानी हिंदुस्तान में, उस वक्त जो टाइम था 3:35 या 50 का वक्त हो रहा था। मेरे सरकार इस दुनिया में जिस वक्त तशरीफ लाए, और कब तशरीफ लाए, जब मेरे सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए तो रात जा रही थी, सुबह हो रहा था। किस तरह से मेरे सरकार इंसाफ फरमा रहे हैं, रात जा रही है, सुबह हो रहा है, ताकि रात ये ना कह सके कि मुख्तार
तशरीफ लाए हैं, हमारा मर्तबा बेहतर है, हमारा मर्तबा बड़ा है। दिन में इसलिए नहीं आए, रात में इसलिए नहीं आए। ऐसे सुबह शादी के वक्त मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं कि रात छा रही थी, सुबह हो रहा था और रात खत्म हो रही थी, सुबह की सफेदी नमोदार हो रही थी। इस सुहाने वक्त में मेरे सरकार तशरीफ लाए हैं। और जब नबी के ये पैदाइश की तारीख है तो अपने घरों में उस वक्त आप सोए नहीं, चिरागा करें, लाइटें लगाएं, मोमबत्तियां लगाएं और लोगों की मदद करते हुए नजर आए। आज की तारीखी में आपको मैं बताऊं, एक नसीहत की बात मैं आपको बता दूं, आज लोग हमें आज हिकारत के नजरों से क्यों देख रहे हैं? हमारे अमाल जो हमारे करतूत हो गए, इसलिए हमें हिकारत के नजरों से देखा जा रहा। अरे हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी के उम्मती हैं। जो नबी तमाम नबियों में लाजवाब है, उनके उम्मती भी तमाम उम्मतियों में लाजवाब है, लेकिन फिर हमें क्यों